सबका 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में बहुत स्वागत है। मैं आप सबसे आग्रह करूंगी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के जो योग में इंटरेस्टेड हैं, जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वो नीचे आसन ग्रहण कर लें। जो सामने वाइट चादर बिछी है उस पे अगर आप जी तो आप में से जो भी थैंक्स अ लॉट। आगे का जो स्थान है वो एक ब्रीफ परफॉर्मेंस होनी है योगा क्लब के छात्रों की। उसके लिए वो थोड़ी सी देर के लिए स्पेस खाली छोड़ना है। उसके बाद में ये भी स्पेस अवेलेबल होगा, यहाँ पे भी आप लोग आसन ग्रहण कर सकते हैं। Nancy Verma, President of Yoga Club PGDB Evening, welcome you all for the celebration of 8th International Yoga Day and Annual Day celebration of Yoga Club. The Gayatri Mantra is the sacred chant that demonstrates the unity that underlies through manifoldness in creation. It is through the recognition of unity. So for making this event auspicious, I invite Anshu for chanting of Gayatri Mantra. भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। For someone else, it will also brighten your path. So I request Principal Professor R.K. Gupta sir, Dr. Meeta Bhatnagar ma'am, Shruti Vip ma'am, Dr. Puneet sir, Dr. Nitish sir, Shri Ashwini sir to come for lighting of lamp. And for Saraswati Vandana, Anshu come over. मैंने बोल दिया इसको खोल देगा, जल्दी से लेके आ जाइए सर। आप उसको रिकॉर्ड करें। वरदे वरदे वीणावादिनी वरदे प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे वरदे वरदे वीणावादिनी वरदे काट अंधार के बंधन स्तर बाह जननी ज्योतिर्मय निर्झर। काट अंधार के बंधन स्तर बाह जननी ज्योतिर्मय निर्झर। कलुष भेद तम हर प्रकाश भर जगमग जग कर दे वरदे वरदे वीणावादिनी वरदे।
कंठ नव जलद मंद्र रव नवन कंठ नव जलद मंद्र नव नव नभ के नव विहग वृंद को नव पर नव स्वर दे वर दे वर दे वीणा वादिनी वर दे वीणा वादिनी वर दे वीणा वादिनी वर दे। Now I invite Namrita, Vice President of Yoga Club, to proceed further. Yoga is not to be performed, yoga is to be lived. But yoga does not care about what you have been. Yoga cares about the person you are becoming. A yoga club member prepared a rhythmic yoga performance on Anadi Ananta under the guidance of our certified trainer, Master Pushp Kaushik. Yoga is not only asana, it is about joining one that part which doesn't end. Now I request our members to come forward.
जगत चैतन्य रूप सर्वत्र व्याप्त The wonderful, peaceful and energetic performance. Now I request Nitish sir, the convener of Teachers Club, to come on the stage and welcome the guest. Good evening, everyone. Life, like a flower bud, human life can also blossom fully. Blossoming of human life towards fullness is yoga. In today's world of stress, yoga is undoubtedly a must-have application which everyone should download in their life. With this course, I welcome special guest of this event, Shri Ujjwal Prasad sir, Senior Manager, PGDV College Evening Branch, Central Bank of India. Please give him a big round of applause, everyone. We have another guest. He is alumni of our college, Shri Ajay Dubey ji. I welcome my seniors, colleagues, and my dear students on this auspicious day of celebration of Yoga for Humanity, 8th International Yoga Day and Annual Day of Yoga Club Shashwat, jointly organized by PGDV College Evening and Central Bank of India PGDV College Branch under the aegis of Azadi Ka Amrit Mahotsav, Yoga Club, NSS and Teachers Welfare Committee of the college. I welcome you once again. Now, starting with the introduction of all the committees. Azadi Ka Amrit Mahotsav. It is an initiative of Government of India to celebrate and commemorate 75 years of independence and to glorify the history of its people, culture and their achievements. This initiative commenced on 12th March 2021 and will end on 15th August 2023. Convener of Azadi Ka Amrit Mahotsav is respected Dr. Meeta Bhatnagar ma'am. Please give her a big round of applause. Next is Yoga Club. Yoga Club is one of the renowned club of our college and it is actively involved in organization of yoga practices every year on same day 21st June every year to educate staff members and students about the importance of yoga in today's world, because it is necessary for all of us to keep ourselves healthy both mentally and physically. Please give a big round of applause to Dr. Shruti Vip, convener of Yoga Club of our college. Now NSS, National Service Scheme. This is a central sector scheme initiated by Ministry of Youth Affairs and Sports under Government of India and was launched in the year 1969. NSS not only develops an students individually but also as a group. It has two domains of organization of activities. One is outside the college, that is organization of blood donation camps, and inside the college plantation drives on a regular basis. Convener of NSS, Dr. Puneet Chandla sir, please give him a big round of applause. Now finally, Teachers Welfare Committee. It is one of the prestigious committee of Staff Council of our college. It works for the betterment of teachers through implementation of various welfare schemes to create a healthy and positive work environment. With these words, I again welcome you all to this wonderful event. Now, starting with the felicitation ceremony. We have with us Senior Manager of Central Bank of India. Central Bank of India is
a nationalized bank owned by Ministry of Finance, Government of India. At present, it has 4,594 branches divided into 10 zones and 90 regions. We are delighted to have you, sir, with us today. Now I request Honorable Principal of our college, Dr. Ravinder Kumar Gupta, sir, to facilitate Shri Ujjwal Prasad, sir. Thank you very much, sir. Moving towards our next guest, as I have already mentioned, he is a proud alumni of our college, Shri Ajay Dubey ji. He pursued his graduation from our college completed his graduation in the year 2020. At present, he is pursuing his post-graduation from Indira Gandhi National Open University. He got his training from Vivekananda Institute, Kanyakumari. He has conducted various sessions in various renowned colleges of University of Delhi, and also rendered his professional services as a certified yoga trainer in our college from 2019 till 2020. His research area is Ashtanga Yoga. I welcome you once again. You have made us proud. I request Dr. Shruti Vip, convener Yoga Club, to facilitate Shri Ajay Dubey ji. Thank you very much, everyone. Over to you, Shruti ma'am. Thank you so much, sir. As we all know, we are gathered here for celebration of 8th International Yoga Day. For this, I request our convener, Dr. Shruti Vip ma'am, kindly praise the students. The Chief Manager, Regional Office, Central Bank of India, Shri Devesh Kumar Gupta ji, who could not be present amongst us, but his blessings are always there. Senior Manager, Central Bank of India, PGDAV College Branch, Shri Ujjwal Prasad ji. Convener of Azadi Ka Amrit Mahotsav, Dr. Meeta Bhattagar ji. Convener of NSS, Dr. Puneet Chandla ji. Convener Teachers Welfare Committee, Shri Nitish Bagri ji, my esteemed colleagues, non-teaching staff and dear students, I, on behalf of PGDAV College Evening, welcome all of you for celebrating 8th International Yoga Day. The theme of this year's International Yoga Day is Yoga for Humanity. The practice of yoga brings joy, health, peace, from within and connects an individual's inner consciousness with the external world, oneness with yourself, the world and the nature. This year's theme reminds everyone how yoga is truly universal, how yoga has helped people during COVID-19 pandemic. It has been an important means of de-stressing, coping with the challenges of social isolation, stress, managing oxygen levels, and so on. Yoga Club was started in 2018 through an initiative taken by college principal Professor R.K. Gupta, whose visionary ideas have taken our college to glorious heights. There has been no looking back since then. Every now and then, there are programs that are being organized. Now let me introduce the audience to the committee members of Yoga Club, Dr. Shamsher Singh, Dr. Deepak Porwal, Ms. Garima Bhardwaj. They all have been the key strategists behind the various activities being conducted under the aegis of Yoga Club. The students are the lifeline of any committee. Our president, Mansi Verma, is a great entrepreneur
and her spirit is never ending. She is definitely a leader in the making. और ये परिवर्तन मैंने अपनी क्लास में देखा है, क्योंकि वो जब फर्स्ट ईयर की छात्रा थी तो वो एक बहुत ही शाय स्टूडेंट थी और कुछ भी नहीं बोलती थी, बट आज आप देखिए योगा क्लब से जुड़ने के बाद और योगा करते करते वो इतनी कॉन्फिडेंट हो गई हैं कि उन्होंने बहुत ही बखूबी योगा क्लब की सारी गतिविधियों को पूरे साल निभाया है। और मैं आशा करती हूँ जैसे अजय दुबे हमारे साथ 2-3 साल के बाद भी जुड़े हुए हैं पास आउट करने के, और वो भी इसी प्रकार से हमारे कॉलेज के साथ जुड़ी रहेंगी। इसके बाद मैं बात करना चाहूँगी पुष्प की। पुष्प इज़ द सर्टिफाइड ट्रेनर that we have in Yoga Club, and you just saw this mesmerizing performance. This was entirely coordinated with by the students, especially under the able guidance of Pushp. And I feel that Pushp is really true to his name. जिस प्रकार से एक पुष्प जो है वो सुगंध फैलाता है और वातावरण को बहुत ही मनमोहक कर देता है, तो पुष्प की प्रेजेंस भी कुछ ऐसी ही है। He is definitely an ideal trainer for our students. Then Namrata is also a very active participant, and she is ably conducting today's program. Besides these, there have been many other students who have put in sincere hard work, and through their dedication and discipline have brought Yoga Club to this level. Now very briefly, I would be talking about several activities of Yoga Club. Right at the beginning, let me make it clear that Yoga Club is not only about organizing event on 21st June, when the entire world is kind of busy in organizing events related to yoga. We at PGDAV Evening College believe in living yoga or experiencing yoga on a daily basis. So therefore, yoga has been an active ingredient of curriculum, both online as well as offline mode. And this again has been the result of Principal Sir's initiative, because even during the lockdown, he kind of ensured that there was regular yoga practice and all the facilities were there for students through various online mediums. In addition to this facility being provided by Yoga Club, the club organizes several yoga competitions, seminars, webinars, quiz competitions, poster making events to apprise students of importance of yoga. Students of Yoga Club have mastered the art of rhythmic yoga, which they got an opportunity to perform even in front of Honorable Vice President of India, Shri Venkaiah Naidu, as part of the college's 60th year celebration. Yoga Club students have made their presence felt on College Sports Day, Annual Day, etc. Latest feather in the cap of Yoga Club has been the successful participation in the 750 million Surya Namaskar Challenge for 21 days, organized on the auspicious occasion of the 75th anniversary of Independence of India, that is Azadi Ka Amrit Mahotsav. Around 40 participants from our college got certificates for this online event organized by Ayush Ministry. The prescribed guidelines of performing 13 rotations of Surya Namaskar daily for a period of 21 days, starting from 14th January 2022, was definitely an event that was instrumental in bringing about good health to these students, because as we all know, Surya Namaskar is a very holistic kind of an exercise. On the 13th day, that is 26th of January 22, Yoga Club celebrated Republic Day by performing 13 rounds of Surya Namaskars along with music
as per the Ayush Ministry guidelines. And in this online event, our principal sir also participated and he even performed these rotations. Yoga Club also took an initiative called Fitness Morning from 1st February 22 to meet individual fitness goals of students. I convey my gratitude to our principal sir for giving me this opportunity to be part of this dynamic club. I am also thankful to our collaborative partners, Azadi Ka Amrit Mahotsav and its convener, Dr. Meeta Bhatnagar, NSS and its convener, Dr. Puneet Chandla, then Teachers Welfare Committee with its young and dynamic leader, Nitish Bagdi, sir, whose interesting introduction has definitely made a very huge impact on the audience. And I am also seeing that teachers have really taken keen interest in today's event. So despite the heat and the holidays, they are amongst us to inspire our students. Thanks a lot, everyone. One who is the head and the strength of the PGDAV family unit, I request our principal sir, Dr. R.K. Gupta sir, please come on the stage and bless the event. Program, the senior manager of Central Bank of India branch in our college, Mr. Ujjwal Singh ji, the convener of Yoga Club of the college, Dr. Shruti Vip, Yoga instructor Ajay Dubey ji, the conveners of all the associated committees, my esteemed colleagues and dear students. First of all, let's once again give a big round of applause for the wonderful performance by our students. And a big applause for the wonderful performance by the Yoga Club throughout the year, rather since its inception in 2018. Big round of applause for this. Students, we are celebrating today the 8th International Yoga Day. And probably you might be aware, and you will be very happy to know, that this event we are celebrating twice today. Once we have done it in the morning at 8 o'clock, and secondly now we are again gathering to celebrate in the evening time. So probably this is also for the first time college is celebrating it twice the same day. So big round of applause for the entire college and for you people. एक बात और है बच्चों जो आप सबको शायद नहीं मालूम होगी, and that is also something to be delighted. We are today celebrating the annual day of Yoga Club also. I don't think Shruti Vipji shared this information. And today we are going to christen the name of Yoga Club. इस योगा क्लब का हम नाम रखने जा रहे हैं और इसका नाम होगा शाश्वत, जो बैनर पर भी लिखा है। इस शाश्वत नाम का भी अनाउंसमेंट मैं आज इस स्टेज, इस इवेंट के थ्रू करना चाहता हूँ। बच्चों, ये जो इंटरनेशनल योगा डे हम सबको मालूम है, 2014 में इट वाज द इनिशिएटिव ऑफ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। उनके इनिशिएटिव पर ये पूरे वर्ल्ड में आज मनाया जाता है। एंड बैरिंग फ्यू एक्सेप्शंस, एंटायर वर्ल्ड, ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड दे सेलिब्रेट इट। कुछ कंट्रीज हैं जो शायद इसको नहीं करती होंगी। और
यह क्यों किया जाता है? तो योग का अभी अजय दुबे जी आपको बताएंगे, और भी आपने योगा क्लब में सीखा होगा कि इट्स नॉट मियरली ए फिजिकल एक्सरसाइज, रादर इट्स योग. Yoga means combination. Combination of what? Combination of mind, brain, soul, and your body all together. That's why it's called yoga, the combination. And we must feel proud कि ये योग आया कहाँ से? ये योग हमारे ही देश की एक देन है. It's a big gift to the entire world. We all know that our country is known for its knowledge, for the great intelligence, for the wisdom. Out of this entire big treasure of knowledge and wisdom, this yoga is a gem out of that particular treasure, and this is a great gift to the entire world. तो हमें इस सबको केवल एक सेरेमोनियल तरीके से साल में एक बार योग दिवस के दिन मनाने के तौर पर नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें इसको अपने लाइफ का पार्ट एंड पार्सल बनाना चाहिए. मैं ये कहना चाहता हूँ. कई बार हमें ये लगता होगा, छोटी एज में हमें ये इम्प्रेशन भी होता है कि ये जो योग आसन इस तरह की चीज़ें हैं, ये तो शायद जो एल्डरली लोग होते हैं, बुज़ुर्ग लोग होते हैं, उनके करने की चीज़ है. हम लोगों के लिए ये नहीं है. लेकिन दिस योग इज़ फॉर एवरीबडी, फॉर ऑल द एज ग्रुप्स, अक्रॉस द जेंडर्स, फॉर एवरीबडी. सो वी शुड एक्सेप्ट इट एंड वी शुड imbibe it into our daily routine. जैसे मैंने कहा, पार्ट एंड पार्सल इसको बनाना चाहिए. योगा क्लब इज़ डूइंग फैंटास्टिक वर्क, और जो भी एक्टिविटीज़ इसमें योगा क्लब के थ्रू ऑर्गेनाइज होती हैं, आई विल रिक्वेस्ट यू टू पार्टिसिपेट मोर एंड मोर इन दोज एक्टिविटीज़. आप में से जो बच्चे अभी योगा क्लब के मेंबर नहीं भी हैं, उसको ज्वाइन करें और इसके जो भी बेनिफिट हैं उसको लीजिएगा. अब क्योंकि काफ़ी समय भी हो रहा है, मैं दोबारा से आप सभी को इस योगा क्लब के द्वारा जो आयोजित ये जो आज का इवेंट है, आप सभी का वेलकम करता हूं. और अभी जो अजय दुबे जी कराएंगे, इसको आप ठीक प्रकार से पूरी तरह से इसको कीजिएगा, ये आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करता हूं. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. Now I request our honorable chief guest, Mr. Ajay Dubey sir, please come on the stage and address the PGDAV family. शवासन की एक बार मुद्रा में बैठ जाएंगे. शवासन में सब आ जाएं. स्टूडेंट्स जो पीछे हैं वो आगे भी आ सकते हैं. स्टूडेंट्स इधर घास पे इधर साइड में आ जाइए. स्पेस मिल जाएगा ना. स्टूडेंट्स सब साइड में आ जाइए इधर, अगर पीछे किसी को दिख नहीं रहा हो. पीछे स्टूडेंट्स साइड में आ जाएं, इधर जगह है. जगह में आंखें बंद, दंडासन की मुद्रा, आसमान की तरफ. इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल. सभी तरह के उथल पुथल सबको नमस्कार करते हुए एक साइड में उनको एक जगह दीजिए. मेरे इस 25-30 मिनट के इस योग में आप परेशानी ना दें.
योग की यात्रा में जाने से पहले आप सभी के हृदय में विराजमान परम शक्ति को मैं प्रणाम करते हुए महर्षि पतंजलि का ध्यान करता हूँ। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैदकेन योगपकरोतां प्रवरं मुनीनां पतंजलि प्रांजलि ननो तस्मै। हे मुनियों में श्रेष्ठ पतंजलि, मैं आपका दोनों हाथ जोड़कर नमन करता हूँ। आपने वाच्य विकारों को व्याकरण से, शारीरिक विकारों को योग से, मानसिक विकारों को योग से, शारीरिक विकारों को आयुर्वेद से दूर किया। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इनहेल, एक्सेल। सभी अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएंगे। थोड़ा वार्म अप जरूरी है करने से पहले 2-5 मिनट का। सभी शोल्डर मूवमेंट, राइट डायरेक्शन में। फोकस ऑन योर ब्रीथिंग। आंखों को बंद भी कर सकते हैं। सारा ध्यान अपने शोल्डर पे। नाउ अपोजिट। सारा ध्यान आपके शोल्डर पे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। सारा ध्यान आपके शोल्डर पे। 5 मिनट पहले वो किस तरह की पोजीशन में थे, अब क्या है? नेक बेंडिंग, राइट डायरेक्शन में। अपनी गर्दन को दाईं तरफ झुकाएंगे। बाईं तरफ, दाईं तरफ, पीछे, आगे, दाएं, बाएं। सारा ध्यान आपकी गर्दन के ऊपर। आंखें बंद। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए, हथेलियां आसमान के ऊपर, दोनों हाथ आपके कान से टच करते हुए, दोनों हाथों को आपस में जोड़ते हुए ताड़ासन की मुद्रा में अपने पंजों पर खड़े होते हुए इनहेल लेंगे। इनहेल, जितना आपको खींच सकते हैं खींचें। अपने कानों से अपने दोनों हाथों को टच करते हुए एक्सेल। इनहेल, एक्सेल। सारा ध्यान पूरी बॉडी के ऊपर ले जाए। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अब चंद्रासन अब करेंगे। ये ताड़ासन था जो हमने अभी किया था। इनहेल, एक्सेल। दोनों हाथों को अपनी कमर के पीछे ले जाते हुए
इनहेल, अपने गर्दन को पीछे झुकाते हुए इनहेल, इनहेल, एक्सेल। फोर्स नहीं करना है, इसमें चक्कर भी आ सकता है। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अर्धचंद्रासन। अब करेंगे अर्धकटी आसन। हमारी किडनी, हमारा स्टमक बहुत अपसेट कभी कभी रहते हैं, जिससे बॉडी का डाइजेशन प्रॉब्लम, बॉडी का कई तरह की प्रॉब्लम, स्वेलिंग जो आ जाती है। अगर उसको हम नेचुरली ठीक करें, योग बहुत बड़ा मित्र हमारे सामने हो सकता है साबित। अर्धकटी आसन बहुत ही लोग करते हैं पर बहुत ही अवॉइड रहता है, मैं जहाँ तक देखता हूँ। अर्धकटी आसन के लिए सबसे पहले आपको इनहेल, अपना दायां हाथ अपने कान से टच करते हुए जितना खींच सकते हैं खींचें अपने हाथ को। जैसे कोई ऊपर आपके हाथ को खींच रहा हो, जितना खींच सकते हैं अपने कान से टच करते हुए इनहेल, एक्सेल, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। इनहेल, एक्सेल। दूसरे हाथ से अपना बायां हाथ बाएं कान के ऊपर, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। आंखें बंद करके पूरा ध्यान अपने शरीर पे, अपने शोल्डर पे। 10 मिनट पहले ये बॉडी किस तरह की स्थिति में थी, 10 मिनट के बाद बॉडी किस तरह की स्थिति में है। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अब हम करेंगे त्रिकोणासन। त्रिकोणासन हमारी थाइस के जॉइंट के लिए, काफ के लिए, हमारे स्टमक में किसी भी तरह की स्वेलिंग, अपसेट और हमारे लंग्स को क्लियर करने का बहुत नेचुरली एक तरीका है। दोनों पैर के बीच में 4 से 5 फुट का गैप। हेलो। दोनों हाथों को हेलो सीधा, कमर सीधी, गर्दन सीधी। जो भी उथल पुथल मन में हो रही है उसको बस एक प्रणाम करके साइड में रख दें। 25-30 मिनट ऊर्जा के समय है। अपना दायां पैर राइट डायरेक्शन में घुमाते हुए इनहेल करते हुए अपने दाहिने पैर को अपने दाहिने हाथ से टच करेंगे। इनहेल, और अपने बाएं हाथ को सीधाई में देखेंगे। एक्सेल लेते हुए इनहेल, एक्सेल, इनहेल। दूसरे पैर से अपने बायां पैर बाईं तरफ घुमाते हुए अपने बाएं हाथ को बाईं तरफ झुकाते हुए अपने दाएं हाथ को सीट की तरफ देखेंगे। इनहेल, एक्सेल। शरीर को आराम दें।
दोनों हाथ धीरे धीरे नीचे करते हुए, आंखें बंद करते हुए अपने शरीर को आराम देते हुए एक शांति की स्थिति अनुभव करते हुए इसको अनुभूति दें, इसको शांति दें। ये इसकी पूजा करने का समय है। शरीर की हम पूजा कर रहे हैं। अंतिम समय तक ये हमारे साथ रहेगा। इनहेल। अब हम करेंगे कुर्सी आसन। हमारे बैलेंस में लाने के लिए बॉडी को, हमारी बॉडी के जॉइंट्स को ठीक रखने के लिए बहुत अच्छा आसन है। जिससे हो वही करें, जिससे ना हो वो ना भी कर सकते हैं। बैलेंस इसमें बहुत ज़रूरी है। इनहेल, एक्सेल। कोशिश करें कि आपकी जो सांस लेने की जो क्षमता है वो नाभि से हो। सांस जितनी हम गहराई में जाएंगे उतना ही हम योग में लीन होते जाएंगे। जितना हमारी सांस नाभि से होगी, हमारी सांसें छाती से ज़्यादा होती हैं। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा गैप। कुर्सी आसन। अपने दोनों पैरों को थोड़ा नीचे झुकाते हुए अपने दोनों हाथों को सामने। जिनसे कुर्सी आसन नहीं होगा वो ना करें, और जिससे और एडवांस में इसे करना है वो अपने सीधे पैर को अपने बाएं पैर के ऊपर रख लें और नमस्कार के मुद्रा में आ जाएं। इनहेल, एक्सेल। शरीर को आराम, आंखें बंद। इनहेल, एक्सेल। किसी भी तरह का प्रेशर नहीं बॉडी में, आराम से। इनहेल, एक्सेल। दूसरे पैर से अपने दोनों पैरों को झुकते हुए। इनहेल, अपने बाएं पैर को दाएं पैर के ऊपर रखते हुए। अब आप देखिए आपकी बॉडी आपसे बैलेंस मांग रही है। इनहेल, एक्सेल। सभी अब बैठ जाएंगे। शांति, एकदम शांति। आंखें बंद। इनहेल, एक्सेल। बॉडी को शांत करिए। इनहेल, एक्सेल। इनहेल, एक्सेल। अब हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। दंड आसन की मुद्रा में सामने आप देखें। दंड आसन की मुद्रा में दोनों पैरों को सीधे, हथेलियां आपकी कमर के आसपास। अपने दोनों उंगलियों से अपने अंगूठों को पकड़ने की कोशिश करें। दोनों उंगलियों से अपने अंगूठे को पकड़ने की कोशिश करें पैर के। इनहेल लेते हुए अपने घुटने को माथे से लगाएं। अपने माथे से घुटने को लगाएं। कोशिश करें, अगर दर्द हो रहा है तो इट मीन्स देयर इज इम्बैलेंस, तो सुधारने की आवश्यकता है। इनहेल लेते हुए ऊपर आए। शांति एकदम। दोबारा से इनहेल, अपने दोनों
अंगूठी दोनों उंगलियों से अपने पैरों के अंगूठे को पकड़ें। इनहेल, रिलैक्स, आसमान की तरफ देखते हुए लंबी गहरी सांस लें। रिलैक्स, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अब हम करेंगे वक्रासन। वक्रासन के लिए अपना दायां पैर को उठाते हुए इनहेल, एक्सेल, शांत। किसी भी तरह की फोर्स बॉडी पे नहीं लाना है। नहीं हो रहा है तो जिस पोजीशन में बैठे हैं कम से कम कमर सीधी करके हम बैठें। कमर सीधी, अगर कोई भी आसन नहीं हो रहे हैं कमर सीधी करके जरूर बैठें। ये 25-20 मिनट कमर सीधी भी बॉडी में कई तरह के चेंजेस ला सकती है। इनहेल, अपना दायां हाथ, अपना बायां हाथ अपने दायां पैर, अपना बायां हाथ अपने दाएं पैर के से टच करें। अपना लेफ्ट हैंड अपने राइट लेग से टच करते हुए अपना राइट हैंड आपका पीछे बैक से ले जाते हुए पीछे इनहेल लेते हुए आप पीछे देखें। एक्सेल लेते हुए वापस आएं। यही प्रक्रिया दूसरे पैर से करेंगे। फोर्स नहीं लाना है किसी भी तरह का। बॉडी में जिस तरह से पोजीशन आ रही है, अपना राइट हैंड अपने लेफ्ट लेग से टच करेंगे और अपना राइट हैंड लेफ्ट हैंड आपका पीछे और पीछे की तरफ मुड़ते हुए इनहेल, होल्ड, इनहेल लेते हुए होल्ड, इनहेल, एक्सेल, वापस रिलैक्स, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अब हम करेंगे मत्स्येंद्र आसन। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अपने दाएं पैर को मत्स्येंद्र सिमिलर है, हम करेंगे ऊष्ट्रासन। अपने वज्रासन में सभी आ जाएं। अपने घुटनों के बल आपको बैठना है। आराम से रिलैक्स, प्रकृति का आनंद लेते हुए अपने अंदर ऊर्जा को समाहित करते हुए रिलैक्स, पूरी तरह रिलैक्स। किसी भी तरह का प्रेशर बॉडी पर नहीं डालना है। प्रेशर आ रहा है तो उसको भी थोड़ा उसको नमस्कार करते हुए साइड कर देना है। ये थोड़ी देर के बाद आना, अभी नहीं। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। में जो खाना खाने के बाद आप कर सकते हैं, आपकी डाइजेशन प्रॉब्लम किसी भी तरह की हो, आपको डाइजेशन को ठीक करता है और आपके खाने को पचाने में भी बहुत मदद करता है। कोशिश करें आप सभी खाना खाने के बाद इस मुद्रा में जरूर बैठने का अभ्यास करें। अपने घुटनों के बल खड़े होंगे। जिससे पूर्ण ऊष्ट्रासन नहीं होगा वो अपने घुटने के बल अर्धचंद्रासन की तरह भी कर सकते हैं। पूर्ण हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अपने दोनों हाथों से अपने पैर को टच करेंगे। पहले बायां हाथ
बाएं हाथ से, लेफ्ट हैंड से, देन राइट हैंड से, एंड इनहेल, एक्सेल, वापस रिलैक्स, इनहेल लेते हुए दोबारा से कोशिश करें होल्ड अगर आप कर सकते हैं अपने बॉडी को। इनहेल लेते हुए अपने दोनों हाथों को टच करेंगे अपने पैर से, इनहेल, होल्ड, एक्सेल, रिलैक्स, रिलैक्स, आंखें बंद करते हुए अपने आसपास हो रही छोटी आवाज़ को सुने। पूर्णतः शांति, पूर्णतः शांति। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। यही बॉडी आपकी 15-20 मिनट पहले किस उथल पुथल में थी, अभी किस पोजीशन में है, इसका भी आप इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अब हम करेंगे शशंक आसन। शशंक आसन सबसे ज़रूरी आसन। अगर आपके लंग्स को, कोरोना के टाइम पे लंग्स एक बहुत बड़ी समस्या बन के उभरा था कि लंग्स की मोस्टली प्रॉब्लम आ रही थी। लंग्स को प्योरीफाई किस तरह से किया जाए नेचुरली, काफ़ी एक्सरसाइज बताई गई थी लंग्स की, पर योग में शशंक आसन इतना बड़ा साथी है अपने लंग्स को नेचुरली साफ करने का। इस सबसे पहले आप वज्रासन में कमर सीधी करके बैठिए, दोनों पैरों के बीच में थोड़ा गैप, दोनों पैरों के बीच में थोड़ा गैप। अपने दोनों हाथों को जितना हो सकता है जमीन से टच कीजिए। इनहेल, एक्सेल लेते हुए ऊपर आइए, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। दोनों हाथ ऊपर ही रखिए, इनहेल। अब आप देखिए इसमें बॉडी किस तरह के मूवमेंट में जा रही है। इस तरह से अब जब आप सांस लेंगे सोचिए आपकी बॉडी में कहाँ उतरी है। एक्सेल, रिलैक्स। आसन में प्राणायाम को शामिल करना बहुत बड़ी चुनौती हो जाता है कभी कभी कि हम आसन में ब्रीथिंग को इम्पोर्टेंस नहीं देते। हम आसन कर लेते हैं और ब्रीथिंग को इम्पोर्टेंस नहीं देते। तो आसन में ब्रीथिंग को इम्पोर्टेंस अगर नहीं देंगे तो आसन का पूरा बेनिफिट हम नहीं ले पाएंगे। प्राणायाम हमें अलग बैठ के करना है, पर प्राणायाम के साथ अगर हम आसन करते हैं तो हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में जो हमारी नाड़ियाँ हैं, नाड़ी शोधन की प्रक्रिया अपने आप शुरू हो जाती है। तो आसन में ब्रीथिंग की हम प्रैक्टिस जरूर करें। अब सभी शव आसन की मुद्रा में लेट जाएंगे अपनी अपनी जगह बनाते हुए। स्टूडेंट आगे भी आ सकते हैं, आप साइड में जगह ना हो। शव आसन मैम ऐसे एकदम रिलैक्स, हथेलियां आसमान की ओर, एकदम रिलैक्स, आंखें बंद। एकदम रिलैक्स। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। सांस आप नाभि से लीजिए, कोशिश कीजिए सांस आपकी नाभि से जाए और नाभि से पूरी यात्रा को आप समझिए।
exhale, inhale, exhale. पूरी तरह रिलैक्स, पूरी तरह रिलैक्स, 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 शांति, शांति, रिलैक्स। Inhale, count, inhale, exhale. अपने दोनों पैरों को 70 डिग्री धीरे धीरे उठाते हुए, धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को सीधे एकदम कमर के पास लाते हुए, पुश पुश 70 डिग्री। एक्सेल, धीरे धीरे नीचे ले जाइए, धीरे धीरे, धीरे 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 फिर आपको इनहेल लेते हुए आगे देखकर बताते रहना करना है क्या। थोड़ा सा ये तो फायदा हुआ ना, वापस से नहीं है, वापस एक्सेल, रिलैक्स, एक्सेल। नाउ 90 डिग्री। भैया 1-2 डिग्री अगर कम रह जाए तो कुछ बिगड़ेगा तो नहीं। जयराम जी फोटो लो। अभी ले रहा हूँ सर। अब आपको अपने दोनों पैर जमीन से टच करने हैं 90 डिग्री ले जाते हुए पीछे। जो कर सकते हैं वही करेंगे। हल आसन, अब हम करेंगे हल आसन। धीरे धीरे पहले 70 डिग्री, 90 डिग्री, फिर आपको पूरा पीछे एक्सेल। सभी रिलैक्स हो जाएगा। दोनों पैरों को 90 डिग्री पे ले जाइए, 90 डिग्री पे ले जाइए और टच कीजिए। पीछे ले जाते हुए टच कीजिए, जितना पीछे जा सकते हैं। हल आसन की मुद्रा में इस तरह से हल की मुद्रा में अपने दोनों हाथों को जमीन से टच करते हुए अपने दोनों पैरों को पीछे की तरफ ले जाइए। एक्सेल, वापस मुद्रा में आइए। एक्सेल, कोई बात नहीं सर। रिलैक्स कीजिए अपने आप को। जिससे जो हो सकता है वही करें, कोई प्रेशर, किसी तरह का प्रेशर नहीं है। अपने आप को रिलैक्स कीजिए। रिलैक्स, 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 शांति, शांति। अपने दोनों हाथों से अपनी कमर को पकड़ते हुए अपने दोनों पैरों को उठाएंगे। सर्वांग आसन, द किंग ऑफ ऑल आसन, इस मुद्रा में इनहेल लेते हुए अपने दोनों पैरों को आप कमर से उठाइए, दोनों पैरों को इनहेल। जिससे हो रहा है वही करें, जिससे हो रहा है। एक्सेल, वापस वापस, एक्सेल, एक्सेल, एक्सेल। लंबी गहरी सांस अपनी नाभि से लीजिए। आपका पेट फूलना चाहिए जब आप सांस लें। पूरी सांस लीजिए एकदम डीप
एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। योग में सांस का बहुत बड़ा खेल होता है। अब हम सांस हैं, प्राण हैं, तभी हम सब यहाँ हैं। एक एक बॉडी के पार्ट में हमारे ऑक्सीजन पहुँचना चाहिए। अगर स्टमक में ऑक्सीजन ठीक ठाक रहेगा, स्टमक प्रॉब्लम नहीं आएगी। माइंड में ऑक्सीजन रहेगा, माइंड में प्रॉब्लम नहीं आएगी। धीरे से अपनी बॉडी को उठाएंगे, धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे, टाइट है, धीरे धीरे, धीरे धीरे, धीरे धीरे। अब ये तो हमने अपने आप को किस तरह से ऊपर नीचे स्ट्रेच करके बॉडी को स्टेबलाइज लाने की कोशिश करी है, बॉडी को स्टेबल में लाने की कोशिश की। बॉडी अभी स्टेबल हुई नहीं है, ये प्राणायाम है, प्राणायाम इसको और स्टेबल करेगा। तो वज्रासन, सुखासन, सिद्धासन, जो भी आपको आसन इन पांचों में अच्छा लगे, वज्रासन, सिद्धासन, सुखासन, एकदम रिलैक्स मोड में आपको बैठना है। वज्रासन में बैठे तो सबसे बेस्ट, सबसे बेस्ट। सेकंड बेस्ट सुखासन, पद्मासन, 3-4 आसन जिसमें आपको बेस्ट लगे। अब हम करने जा रहे हैं प्राणायाम। अपने प्राण को समझने, अपने अंदर प्राण को डालने। इस प्रकृति के बीच में हम बैठे हुए हैं। प्राणायाम को करने से पहले आंखें बंद, हाथ जोड़ते हुए प्राणायाम का मंत्र मन में ही अभ्यास करेंगे। ओम प्राणस्य वशे सर्वं त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठितं। प्राणस्य वशे सर्वं त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठितं। मातेन पुत्रान् रक्षस्वः, मातेन पुत्रान् रक्षस्वः। श्रीशीम प्रज्ञां च विदेहि न इति, श्रीशीव प्रज्ञां च विदेहि न इति। उपनिषद में प्रश्नोपनिषद के दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक है, प्राणस्य वशे सर्वम। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें प्राणवास नहीं करता। कोई भी चीज़, जो चीज़ अपने आज अंतिम मूल रूप में है, उसमें प्राण था। प्राणस्य वशे सर्वम, प्राण हर जगह है, तीनों लोकों में प्राण है। त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठितम, जिस प्रकार माता अपने संतान की रक्षा करती है, संतान का लालन पालन पोषण करती है, उसी प्रकार मातेन पुत्रान् रक्षस्वः, उसी प्रकार प्राणायाम भी हमारी माता की तरह, हमारे पिता की तरह ये हमारी रक्षा करता है। और अंतिम समय तक ये हमारे साथ प्राण रहते हैं। जब समय आता है तब प्राण को नमस्कार करके हम इस पृथ्वी से हम विदाई लेते हैं। तो प्राण को हम समझेंगे, प्राण इज़ नॉट अ ब्रीथ। हम इसको सांस ना समझें, सांस लेने का तरीका। प्राण इज़ नॉट अ ब्रीथ, इट इज़ अ कॉस्मिक एनर्जी विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द मूवमेंट्स। इफ वी कैन कंट्रोल द प्राण, वी कैन कंट्रोल ऑल द बॉडी मूवमेंट्स। दो तरह के मूवमेंट्स होते हैं, इनवॉलंटरी और वॉलंटरी मूवमेंट्स। इनवॉलंटरी मूवमेंट जो होते हैं वो हमारे ब्रेन्स, लंग्स, इंटरनल पार्ट्स को कनेक्ट करते हैं। वॉलंटरी मूवमेंट्स हमारे एक्सटर्नल पार्ट्स, हमारे आईज, नोज, इन सबसे कनेक्ट करते हैं। प्राण इन दोनों को संगम में लाने का तरीका है। सबसे पहले हम अपने अंदर जो वायु, प्रदूषित वायु है, उसको निकालने का अभ्यास करेंगे, तब जीवंत वायु डालने का फिर प्रयास करेंगे। कमर सीधी जरूर हो, कमर सीधी जरूर हो। परम शक्ति का एकदम ध्यान लेते हुए, परमात्मा का ध्यान, परम शक्ति का ध्यान लेते हुए आप ध्यान मुद्रा में अपने दोनों अंगूठे ले आएंगे। अब हम करेंगे कपालभाति, जिससे हम प्रदूषित वायु को बाहर निकालने का अभ्यास करेंगे। हमें सांस लेनी नहीं है, सांस हमें अपने स्टमक पर एक फोर्स डालते हुए सांस को बाहर निकालना है, नाक से, हमारी नोज से, आराम आराम से, आराम आराम से।
inhale, deep inhale, exhale. Now start Kapalbhati. कोशिश करें कमर सीधी जरूर हो। 10 राउंड। रिलैक्स। स्टार्ट। सांस लेनी नहीं है। आप बॉडी में देखिए, सांस हम ले तो नहीं रहे हैं, इनहेलेशन नहीं है, बिल्कुल सारा एक्सहेलेशन है। स्टमक पर एक फोर्स डालते हुए एक्सहेलेशन। अगर सर्जरी किसी की हुई हो, किसी को ज़्यादा ही दर्द होता हो पेट में, किसी भी तरह की किसी की प्रॉब्लम हो, वो थोड़ा देखें अपने आप को, वो ना करें। कपालभाति के बहुत सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं, तो ये आपको एनर्जाइज करने का और अपने अंदर प्रदूषित वायु, जब तक प्रदूषित वायु बाहर नहीं निकलेगी तब तक जीवंत वायु को, तब तक अच्छी वायु को अंदर आने में देर होगी, वो श्वसन नाली में भी रह के बाहर आ जाएगी। आखिरी राउंड। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। प्राणवायु को महसूस कीजिए, छोटी से छोटी आवाज को महसूस कीजिए। प्रकृति की गोद में हम बैठे हैं, उस गोद का अनुभव कीजिए। रिलैक्स, रिलैक्स। अब एक सेकंड प्राणायाम करेंगे भस्त्रिका। जो तेज कर सकता है वो तेज करें, जो आराम आराम से कर सकता है आराम आराम से करें, पर अपनी बॉडी को फोर्स में नहीं लाना है। आपको बॉडी पर किसी भी तरह का प्रेशर नहीं डालना है। जैसे हम कर रहे हैं जरूरी नहीं है आप वैसे करें। बॉडी को समझाना है कि आज हम ये कर रहे हैं तो आप भी समझो। वो मानती नहीं है, यही आप आज प्राणायाम कर रहे हैं, उसको मन नहीं करेगा करने को, क्योंकि बॉडी को अच्छा नहीं लगता। कभी कभी बॉडी को अच्छा करवाना है, उसको समझाना है। भस्त्रिका में आपको इनहेल एक्सेल हल्का हल्का स्पीड में, ध्यान मुद्रा में लेते हुए आराम आराम से। कोशिश कीजिए सारा आपकी जो सांसें हैं नाभि से कनेक्ट हों, नाभि से आप सांस का आदान प्रदान करें, क्योंकि रेचक और पूरक की जो क्रिया है बहुत परिवर्तन ला सकती है। आंखें बंद हो तो सबसे सुंदर। इनहेल एक्सेल, 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 इनहेल एक्सेल। शांति। नॉर्मल ब्रीथिंग, नॉर्मल ब्रीथिंग। रेचक, पूरक। अब हम आते हैं कुंभक। अब हमने सांस को लिया, सांस को छोड़ा, इनहेल किया, एक्सहेल किया, पर प्राण स्टेबल नहीं रहा। प्राण तब स्टेबल होगा जब हम सांस को थोड़ा बहुत स्टोर रखेंगे अपनी बॉडी में। कुंभक, अंतर कुंभक और बाह्य कुंभक। पहले प्रैक्टिस करेंगे हम बाह्य कुंभक की। सांस को छोड़ते हुए कोई एक्सहेलेशन इनहेलेशन नहीं, स्टॉप, होल्ड। सारी सांस को आप इनहेल, एक बार सब इनहेल करेंगे, इनहेल एक्सहेल, होल्ड, नो ब्रीथिंग, नॉर्मल। इनहेल एक्सहेल, होल्ड, नो ब्रीथिंग। अब हम लेंगे कुंभक की असली प्रक्रिया। सांस को अंदर स्टोर करते हुए किसी भी तरह की ब्रीथिंग नहीं करेंगे, स्टोर करेंगे सांस। इनहेल, एक्सहेल,
धीरे धीरे धीरे। चेक योर बॉडी, कितनी बॉडी सांस को रोक सकती है। दोबारा से किसी भी तरह का माइंड में चक्कर जैसा लग रहा हो, आप नॉर्मल पोजीशन में आ जाएं। बाह्य कुंभक अर्थात अंदर कुंभक में ऐसा हो जाता है। इनहेल, एक्सेल, नॉर्मल ब्रीथिंग। अब हम अपनी नाड़ियों को शुद्ध करते हैं, अपनी एक एक विंग्स, एक एक नाड़ियों को अंदर संभालें। हमारे बाल तक से जो कनेक्टेड एक नाड़ियां गई हैं, नाड़ी से कनेक्ट करते हुए नासिका मुद्रा सब बनाएंगे। नासिका मुद्रा, दोनों उंगलियों को, थंब, लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर का कोई यूज नहीं है। थंब, लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर का कोई यूज नहीं है। दोनों उंगलियों को आप टच करेंगे, नीचे लाएंगे, और रिंग फिंगर और थंब का ही सारा यूज होगा नाड़ी शोधन में, अनुलोम विलोम में। नाड़ी शोधन में, अनुलोम विलोम में। इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन एक ही चीज है। अनुलोम विलोम एक नॉर्मल ब्रीथिंग एक्सरसाइज है, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। नाड़ी शोधन से पता चलता है कि आप में प्राण कितना स्थायित्व है, प्राण की कितनी स्टेबिलिटी है। तो उसके रेशो बताएंगे। पहले अनुलोम विलोम, सभी सांस इनहेलेशन करेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। इनहेलेशन फ्रॉम लेफ्ट नॉस्ट्रिल, बाईं नासिका से सांस को लेंगे, अपने थंब से दाएं तरफ अपने नासिका को बंद करते हुए इनहेल फ्रॉम लेफ्ट नॉस्ट्रिल, इनहेल फ्रॉम बाईं नासिका, इनहेल, एक्सहेल फ्रॉम राइट नॉस्ट्रिल, एक्सहेल, इनहेल फ्रॉम राइट नॉस्ट्रिल, इनहेल, exhale from left nostril, exhale, inhale from बाईं नासिका, exhale from दाईं नासिका। दूसरा हाथ आपका ध्यान मुद्रा में रहेगा। inhale from right nostril, exhale from right nostril। कमर सीधी जरूर रहे। Inhale from right nostril, exhale from right nostril, inhale from left nostril, exhale from right nostril। कमर सीधी जरूर रहे और कोशिश कीजिए सांस आप अपनी नाभि से जरूर लें। छाती से सांस जितनी हमारी छोटी होती है उतनी हमारी बॉडी में हलचल मच जाती है। आप कभी नोटिस करना, आपको कुछ गलत समाचार मिलता है, कुछ डर सा लगता है, कभी कभी हमें डर लगने लगता है, तो सांसें हमारी छोटी बहुत जाती हैं। तुरंत आप सांस को जितना लंबा ले जाएंगे, जितना आप नाभि से कनेक्ट करेंगे, उतना ही जो डर है वो दूर होता चला जाएगा। क्योंकि एंडोर्फिन नाम का हार्मोन, जो एक हैप्पी हार्मोन है जिससे खुशी आती है बॉडी में, वो हमारी नाभि से कनेक्ट है, हमारे मणिपुर चक्र से। मणिपुर चक्र जितना कनेक्ट होगा उतना ही एंडोर्फिन हार्मोन और हमारा जो एक तरीका है सोचने का, उसमें भी एक हैप्पी मूवमेंट आएंगे। अब हम नाड़ी शोधन, इनहेलेशन 3 सेकेंड राउंड में, इनहेल, एक्सहेल आपका 4 में हो। जितना एक्सहेलेशन, जितना आप टाइम लेते हैं उतना बेस्ट है नाड़ी शोधन में। होल्ड टाइम 2 सेकंड भी हो सकता है, 4 सेकंड भी हो सकता है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ 2, 3, 4, समझ, 2, 3, 4 नाड़ी शोधन। नासिका मुद्रा में सब आएंगे। नाड़ी शोधन में दाईं नासिका से सांस लेंगे, दाईं नासिका से। सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी दाईं नासिका। इनहेल 2 सेकंड लेंगे पूरा इनहेल में। इनहेल, इनहेल, एक्सहेल,
इनहेल दाईं नासिका से, फिर दाईं नासिका से इनहेल, होल्ड 1 2 3, एक्सेल। सांस कितना रुक सकती है बॉडी में, इसका हमें बैलेंस देखना है, कितना इसको चेक करना है। सांस अगर बॉडी में रुकती नहीं है, सिर्फ आदान प्रदान हो रहा है, आप सोचिए सांस हम डेली, बिना सांस के तो कोई भी नहीं है, एक्टिव ही नहीं हो पाएगा। अब हम सांस फोकस में ले रहे हैं, हम ब्रीथ को हम फोकस में ला के ले रहे हैं और प्राणायाम कर रहे हैं। ब्रीथ हम ले ही नहीं रहे, प्राणायाम कर रहे हैं, मतलब हमारा सांसों पर ध्यान है। सांसों पर जैसे ही ध्यान जाता है, विचार तुरंत भाग जाते हैं, एकदम तुरंत भाग, मतलब रहते नहीं है विचार। अगर जैसे आता सांसों पे ध्यान, जैसे इनसे ध्यान हटता है, माइंड में थॉट आया। इनहेलेशन अब लेफ्ट नॉस्ट्रिल से 2 3 4, इनहेल, रिलैक्स दोनों हाथों को नॉर्मल पोजीशन में, ध्यान मुद्रा में। भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम, ये चीज प्राणायाम माने जाते हैं। बाकी गर्मी है बॉडी में, हाई बीपी, किसी किसी की प्रॉब्लम होती है, हाई बीपी को तुरंत शांत कैसे करें, ये भी बहुत बड़ी समस्या है। और डिलीजेंटली परफेक्टली किस तरह से हम उस पर हम ध्यान दें। शीतली प्राणायाम बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत अच्छे इसके एडवांटेज सामने आए हैं। शीतली प्राणायाम अब दिल्ली में तो मैं रेकमेंड करता हूँ, क्योंकि वायु यहाँ की, पर हो सके तो जब शुद्ध वायु में आप हों, सुबह ब्रह्म मुहूर्त के आसपास 4 से 6 के बीच की जो टाइम है आपका, शाम को संध्या काल में तो होगी नहीं शाम वायु, पर अगर है तो आप कोशिश करें शीतली प्राणायाम करने की। शीतली प्राणायाम के लिए ध्यान मुद्रा में आप अपने कमर सीधी, अपनी जीभ को एक पाइप नुमा आकृति लेते हुए बाहर निकालें और इनहेल करना है आपको नाभि तक और स्टोर करना है। जैसी एक्सहेलेशन आए देन अब करते हैं शीतली प्राणायाम। अपनी टंग को बाहर निकालते हुए एक पाइप नुमा आकृति देंगे। इनहेल, स्टॉप, नो एक्सहेलेशन, पूरे कॉलेज को पता लगा। एक्सहेल, अगेन इनहेल, क्या है ज़्यादा लगा, एक्सहेल। सांस छोड़नी है अपनी, हमारी नोज से। एक्सहेलेशन हमें लेना है, हमें वायु का पान करना है। हम पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, पर वायु का पान हम बहुत कम कर पाते हैं। और दिल्ली जैसे शहर में जहाँ वायु इतनी ख़राब है, वहाँ तो वायु का पान गलत भी हो सकता है। तो जब आप साफ सुथरी वायु में हों, आप जरूर इसका अभ्यास करें। लास्ट राउंड शीतली प्राणायाम। Exhale from nose. This is yoga for glowing skin. किसी भी तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट की जरूरत ही नहीं है। अगर हम 4 से 5 से प्राणायाम कर लें, एक ऑटोमेटिक चमक हमेशा बनी रहेगी आप पे, चाहे 60 हो, 70 ईयर्स हो, 5-6 साल तो कम ही दिखेंगे। एंटी एजिंग शीतली प्राणायाम। अब आखिरी के 2 छोटे छोटे प्राणायाम हैं। ये प्रोटोकॉल में नहीं है योगा के इसमें, पर ये बहुत अवॉइड रहते हैं, लोग कम करते हैं। अगर किसी को 2 तरह की हमारी बॉडी में नाड़ियाँ, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। ईड़ा नाड़ी वीक जब हो जाती है, बॉडी को पता कैसे चलता है? वीकनेस लगे, लैक ऑफ प्लेजर लगे, सब कुछ है पर तब भी प्लेजर की कमी, एक आत्मसंतुष्टि की कमी, वीकनेस लगे, प्लेजर की कमी लगे,
स्ट्रेंथ बॉडी में नहीं हो और एक्सेसिव थॉट्स माइंड में कुछ ज़्यादा ही आ रहे हैं। ईड़ा नाड़ी वीक के साइन है और पिंगला नाड़ी के ओवर एक्टिव के साइन है। पिंगला नाड़ी ओवर एक्टिव जब होती है तब बॉडी में एक अचानक जो गुस्सा आने की प्रवृत्ति है वो बढ़ जाती है और बॉडी में एक स्टेबलाइजेशन नहीं रहती। अब आपको सांस सिर्फ आपको चंद्र भेदी में प्राणायाम हम करेंगे। चंद्र नाड़ी सांस सिर्फ बाईं नासिका से लेनी है, बाईं नासिका से ही छोड़नी है। अभी तक दोनों नोज नॉस्ट्रिल से आदान प्रदान था सांस का। अब सिर्फ सांस का जो आदान प्रदान है वो सिर्फ बाईं नासिका से होगा। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। सूर्य नाड़ी जब करेंगे अभी हम चंद्र भेदी प्राणायाम। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। सेम थिंग सूर्य नाड़ी दाईं नासिका से सूर्य भेदी प्राणायाम। डिप्रेशन, ओसीडी, टेंशन आ रही है बॉडी में और आपको एक तरह का स्टेबलाइजेशन बॉडी में दिख नहीं रहा है, बॉडी माइंड्स का, थॉट्स पावर का, आप सूर्य भेदी प्राणायाम, सूर्य भेदी चंद्र भेदी दोनों करें बॉडी में स्टेबलाइजेशन लाने के लिए। सांस का आदान प्रदान सिर्फ दाईं नासिका से, राइट नॉस्ट्रिल, इनहेलेशन एक्सहेलेशन। इनहेल, सांस को थोड़ा रोकें जरूर, 2 से 3 सेकंड रोकें जरूर। एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। अपने आप को रिलैक्स मोड में आते हुए अब आप देखें बॉडी में प्राण का तत्व कितना बढ़ गया है। जो बॉडी 15-20 मिनट पहले, आधे घंटे पहले थी, अब क्या है। 5 बार ओम का जाप करते हुए, ओम की ध्वनि आप समझिए, अ, उ, म, इन तीनों को वाइब्रेशन में लाने का काम करती है तो बॉडी स्टेबलाइजेशन में जाती है। उसके बाद आंखें बंद। अब आपकी आंखें तभी खुलनी चाहिए जब मैं बोलूं, तभी आप इस आनंद ले पाएंगे इस ध्वनि का, इस गुंजायमान, द साउंड ऑफ यूनिवर्स। अगर असली आनंद हम प्रकृति के बीच में बैठे हुए हैं। इनहेल एक्सहेल, इनहेल छोटी ध्वनि का ध्यान सुनते हुए अपना सारा ध्यान रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, सारा ध्यान, आंखें बंद जरूर हो,
सारा ध्यान अपने दाएं पैर के अंगूठे पे ले जाएं। सारा ध्यान अपने दाएं पैर के अंगूठे पे ले जाएं। ये राइट लेग के अपनी थंब पे ले जाएं। अपने पैर की सभी उंगलियों पर अपना ध्यान ले जाएं। धीरे 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 इनहेल। अपना ध्यान दाएं पैर के घुटने पे ले जाएं। अपना ध्यान अपनी जांघ अपनी थाइस पर ले जाएं। सारा ध्यान इनहेल। अपना ध्यान अपने बाएं पैर के अंगूठे से होते हुए अपने घुटने पर ले जाएं। अपने बाएं पैर की थाइस इनहेल। कमर सीधी जरूर रखें। अपना ध्यान अपने स्टमक से होते हुए चेस्ट तक ले जाएं। धीरे 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 अपना ध्यान अपने दाहिने कंधे पर ले जाते हुए अपनी कोहनी दाहिने हाथ का पूरा पंजा, पांचों उंगलियां बाएं हाथ पर ध्यान धीरे 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 बाएं हाथ पर ध्यान ले जाएं। बाएं हाथ के कंधों पे कोहनी। अपना ध्यान अपने लिप्स पर धीरे धीरे लाएं। नोज, आईज, हेड, अपने बालों पर ध्यान ले जाएं। सारा इनहेल, एक्सहेल। दोनों हाथों को रब करते हुए धीरे से अपनी आंखों पे लगाएं। बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सहयोग दिया, बहुत अच्छा किया। बहुत सबने अच्छे से प्राणायाम योगासन किए। कोई त्रुटि हो गई हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, किसी भी तरह का। तो अब हम धीरे से उठेंगे, धीरे से उठेंगे। सर, मैडम दुबे सर और हमारे आदरणीय टीचर्सगण, रेस्पेक्टेड टीचर्सगण, स्टूडेंट्स, और इस योगा अभ्यास के दौरान जितने उपस्थित हुए हमारे स्टूडेंट्स, कॉलेज के स्टूडेंट्स, हमें काफ़ी अच्छा लगा। योगा का मतलब होता है कि मिलना, तन और मन से मिलना, आत्मा और परमात्मा से मिलना, तभी हम एक सफल हो सकते हैं किसी भी क्षेत्र के लिए। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि योगा बहुत बड़ी चीज़ है। योगा में तो उसकी पूरे वर्ल्ड में इसकी
विजय घोषित किया जा रहा है कि होना है अंतर्राष्ट्रीय भवन में। हम प्रिंसिपल साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि कम से कम हमें बुलाकर अपने सेंट्रल बैंक बुलाकर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और मैनी थैंक्स। Thank you so much, sir. A winner never stops trying. Now, I request Garima ma'am for the announcement of prize distribution. Thank you, Namrata. A very good evening, all of you. A very warm welcome on the celebration of 8th International Yoga Day and the annual day of Yoga Club, PGDAV College Evening. I thank our principal, sir, our chief guests, and my dear colleagues for being here for this celebration. I am here to present the activities of the Yoga Club throughout the year 2021 and 22. From August 9th, 2021, our So I'm just directly starting with the prize distribution. Okay, so in the whole journey of Yoga Yatra, all the faculty members of our yoga club contributed their share with utmost sincerity, hard work and dedication. So for being so mindful for their duties and responsibility, I want to thank Dr. Shruti Vip, the convener of Yoga Club, Dr. Shamsher sir and Dr. Deepak sir for being a constant support throughout. And now our student members of the Yoga Club, Pushp, he is a student as well as the trainer of the club for the year, and Mansi, the president of our yoga club, and the Namrata, she is the vice president of yoga club, and whatever we are today, it's because of their support and being the constant pillars of the club. So apart from them, there are other members also, but because we are lacking time, so I will not be able to take the complete names. Just like a body cannot survive without the soul, our club couldn't have been survived without the consciousness, and the consciousness of it is nothing else but our principal sir. So for the unconditional support and constant encouragement that we have got from principal sir is undoubtedly deserves a round of applause. Now I request Principal Sir to please be here and felicitate our winners as well as our participants for their contribution in the year's activity. Sir, please. So the club had organized a competition, one second. Yeah. So the Yoga Club of PGDAV College Evening had organized on May 2nd a Yogasana Pratiyogita, and Priyanka from PGDAV College Evening, Priyanka from PGDAV College Morning won the very first prize. Is she here? Hariom from PGDAV College Evening won the very second prize. The club had also organized a quiz competition with the name Brainstorm, and the team from our college has also won the same. A team of Adarsh and Hariom. So I please request Hariom to please be here again.
Now I request Pushp, student cum trainer of the club, to please be here and get his share of achievement. Mansi, Vice President of the club. And Namrata, Vice President of the club. We have other members also of the yoga club, but we will going to give them the certificates later, but they can join for the group photograph. Pushp, Namrata, Mansi, Tulsi, Kunjan, Diksha, Not me, but you. Swati, Satyam, Anuj, Donam, Giriraj and Hariom. You all can join for the group photograph. क्या है मेरा सिस्टम बंद हो जाएगा। ये डंडा भी पैक कर देता। Good evening, all of you. Today, as you know, we are celebrating 8th International Yoga Day. It is called Shashwat. So I give a very hearty vote of thanks to our principal sir, Professor R.K. Gupta, Shri Ashwini Dhingra, Regional Head, Central Bank, Dr. Nitish Bagri, Convener, Teacher Welfare Committee, Dr. Puneet Chandla, Convener, National Service Scheme, Dr. Shruti Vip, Convener, Yoga Club, myself, Dr. Mrs. Meeta Bhatnagar, Convener, Azadi Ka Amrit Utsav. As we all know, yoga's origin can be traced to northern India over 5,000 years ago. The word yoga was first mentioned in ancient sacred texts called Rig Vedas. Yoga or union pronounced a group of physical, mental and spiritual practices or disciplines which originated in ancient India and aim to control yoga and still the mind, recognizing a detached witness, consciousness, untouched by mind, chitta, and mundane suffering, dukha. Yoga has its roots in religion. It's not in itself a religion, but it is better understood as spiritual practice. Lord Shiva is considered the Adi Yoga, that is the founder and father of yoga. He is the foremost among the yogis and the first teacher of science of yoga. He is the representation of flawless meditation and spirituality. Swami Vivekananda, Hindu reformer, first introduced yoga to a larger audience. So I am very happy today that we all gathered here for our health, because we have so many health related issues. We have blood pressure, we have stress, and so much of stress is there today. We are already under stress that we have to go back home, and so much of traffic is there. So I think yoga, if we do yoga, we can improve ourselves, our health, our mind and our body. Okay, so thank you very much. Thank you all of you. मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप अपने स्थान पे बने रहिए। यहीं पे आपको रिफ्रेशमेंट सर्व की जाएगी और आशा करती हूँ कि आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अजय दुबे ने जिस प्रकार से इसे कंडक्ट किया, आई फील सो प्राउड ऑफ इट, बिकॉज अभी 2-3 साल पहले तक ही वॉज आवर स्टूडेंट। और इससे ये सिद्ध होता है कि योग सीखने और सिखाने की कोई आयु नहीं है। तो आज हम सब ने अपने एक छात्र से योग करना सीखा और जिस तरीके से उन्होंने एक समा बांधा और सबको अपने साथ लेकर चले, वो वाकई बहुत सराहनीय है। आप सबका
आज इस फंक्शन में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष रूप से मैं प्राचार्य सर और हमारी जो पूरी स्टाफ यहाँ पे हमारे बीच उपस्थित है, मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ कि आई एम फीलिंग सो मच ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स each one of you. Thanks a lot, and special thanks to students also who had put in their heart and soul in this today's performance. और आशा करती हूँ कि इसी जज्बे के साथ भविष्य में भी आप सब हमारे साथ बने रहेंगे। धन्यवाद।